Assalamu alaikum everyone. I hope you all are good. Welcome back to Medical Globe e-learning. We were discussing pelvis and perineum, second year anatomy. This book is KLM and this edition is 7th. We were discussing about part 1 of pelvis. As you people know, pelvis carries 1 UQ and 2 MCQs. This is part 2 of pelvis. It means it is also important. Now let's start our chapter, that is neurovascular structures of pelvis. As such, this chapter is not important, but this is important for your viva questions. What are pelvic arteries? What are branches of pelvic arteries? ये आपको पता होना चाहिए. What is internal iliac artery? This is important viva question. Anterior deviation कौन सी है? Umbilical artery कहाँ से originate करती है, किन चीजों को supply करती है? This is important. Obturator artery is also important. कहाँ से origination है इसका? This is important. This is for your concept. You can consult this diagram. This is also continuation of pelvic arteries. Inferior vesical artery, uterine artery की branches आपको पता होना चाहिए, इसकी origination. This is the table of arteries. You can consult this table also. This is whole. This is also continuation of arteries of pelvis. This is the continuation of vaginal artery, middle rectal artery, internal pudendal artery is important. अच्छा जी, inferior gluteal artery. This all are important, but for your viva question, the important is branches, their origination और किन किन चीजों को supply करती है. Iliolumbar arteries, lateral sacral artery, ovarian artery is important. ये आपका viva question है, आपसे पूछ लेते हैं कि इसकी branches बता दें. Ovarian branches and tubal branches होती हैं. ये आपने देखना है. Median sacral artery is also important. अच्छा, ये एक small unpaired artery होती है, ठीक है. ये आपका MCQ है, ये आपने देखना है. अच्छा जी, नेक्स्ट है यही आर्टरी है सुपीरियर रेक्टल आर्टरी. दिस इज डायरेक्ट कॉन्टिन्यूएशन ऑफ इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी. दिस इज योर इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज. अच्छा जी, व्हाट इज पेल्विक वेन्स? दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर वाइवा क्वेश्चंस. पेल्विक वीनस प्लेक्सिस क्या होते हैं? इंटरनल आइलियक वेन्स एंड सुपीरियर ग्लूटियल वेन्स किनको ड्रेन करती हैं. लेटरल सैक्रल वेन्स इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. This is for your concept. You can consult for your concept. Lymphatic drainage of pelvis. This is important. External iliac lymph nodes कहाँ पे lie करते हैं और कौन कौन सी चीजों से receive करते हैं lymphatics. Internal iliac lymph nodes कहाँ पे lie करते हैं और कौन कौन सी चीजों से receive करते हैं. Sacral lymph nodes, common iliac lymph nodes, इनको आपने अच्छे से पढ़ना है और इनका आपने देखना है कि कौन सी जगह से drain करते हैं. Next है जी pelvic veins. Innovation. Obturator nerve is important for your MCQ. Obturator nerve कहाँ से arise करती है? Anterior rami of spinal nerves L2 L4 of lumbar plexus in the abdomen. This is your MCQ. Lumbosacral trunk कौन कौन बनाता है? This is also important. Sacral plexus is important fiber and SCQ question. हमेशा ये पूछते हैं, ठीक है. सैक्रल प्लेक्सिस कहाँ पे लोकेट करते हैं? ये देखो, लोकेटेड ऑन द पोस्टेरोलेटरल वॉल ऑफ द लेसर पेल्विस. और कौन कौन सी मेन नर्व्स है जो अराइज करती हैं? शियाटिक एंड पोडेंडल नर्व्स. ये आपको पता होना चाहिए. पोडेंडल नर्व की फर्दर डिटेल आपने अच्छे से देख लेनी है. दिस इज इंपॉर्टेंट. अच्छा जी, व्हाट इज कॉक्सीजियल प्लेक्सिस? दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. ये आपने अच्छे से देख लें, ठीक है. दीज आर ट्रंक्स. ये सारा आपने अच्छे से रीड करना है. पेल्विक ऑटोनॉमिक नर्व्स को एक अच्छा सा रीड दे लो. दे कैन आस्क इन योर वाइवा क्वेश्चन. अच्छा, बाकी टेबल इज नॉट एज सच इंपॉर्टेंट. अच्छा, दिस इज इंपॉर्टेंट, दैट इज सुपीरियर एंड इंफीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सिस. they both are important for your viva question as well as SCQ question. कौन बनाता है? हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सिस आपको पता होना चाहिए. इंफीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सिस कौन बनाता है? ये आपने सारा देखना है. अच्छा जी, ये देख सकते हो पेल्विक सप्लानिक वेन्स क्या होती हैं, कहाँ से अराइज करती हैं, किन को सप्लाई करती हैं, ये आपने अच्छे से देखना है. एज सच दिस चैप्टर इज नॉट इम्पॉर्टेंट बट इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर योर वाइवा क्वेश्चन. विजरल एफरेंट्स, इसको जस्ट एक रीड कर लो. दिस इज योर एमसीक्यू. पेल्विक पेन लाइन क्या होती है? ये अंडरलाइन चीजें आपने जरूर एक दफा बच्चे इनको रीड करना है. मैंने इसलिए हाईलाइट किया बिकॉज दे आर इंपॉर्टेंट. दीज आर द क्लिनिकल्स ऑफ न्यूरोवेस्कुलर स्ट्रक्चर्स ऑफ पेल्विस. एज सच नॉट इम्पॉर्टेंट बट it's your responsibility to read out the whole page.
अच्छा जी, नेक्स्ट हम चैप्टर पे चलते हैं, दैट इज पेल्विक विजरा, दैट इज आल्सो चैप्टर ऑफ पेल्विस एंड दिस इज इम्पोर्टेंट चैप्टर फॉर योर ऑस्पी वाइवा एंड एससीक्यू क्वेश्चंस। पेल्विक विजरा होता क्या है, दिस इज जस्ट रीड कर लो डिटेल क्या है। यूरिनरी ऑर्गन्स कौन कौन से हैं, इनमें यूरिटर्स हैं, यूरिनरी ब्लैडर है, यूरिथ्रा है, ये आपने अच्छे से देखना है। अच्छा, नेक्स्ट हमारा जो मेन टॉपिक है दैट इज यूरिटर्स। दिस इज योर एमसीक्यू दैट इज इन हाईलाइटेड फॉर्म। व्हाट इज द लेंथ ऑफ यूरेटर, ये आपको पता होना चाहिए। व्हाट स्ट्रक्चर्स आर रेट्रोपेरिटोनियल, दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट। वाइवा में अक्सर पूछते हैं कि व्हाट स्ट्रक्चर्स आर रेट्रोपेरिटोनियल एंड व्हाट आर पेरिटोनियल, तो ये आपने अच्छे से देखना है, ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट। अच्छा जी, ये सारा कॉन्टिन्यूएशन है उसके स्ट्रक्चर की, आप एक दफा देख लो, इसको जरूर अच्छा सा रीड करो। आर्टीरियल सप्लाई एंड वीनस ड्रेनेज ऑफ कोर्स इज इम्पॉर्टेंट, इसकी आपको ब्लड सप्लाई आनी चाहिए, इनोवेशन आनी चाहिए, दिस इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। अच्छा, यूरिनरी ब्लैडर पे हम मूव ऑन करते हैं। यूरिनरी ब्लैडर का स्ट्रक्चर इज इम्पॉर्टेंट, ये वाइवा में अक्सर पूछते हैं, उन्होंने छोटा सा ब्लैडर रखा होता है और उसका पूछते हैं वेजिकल पार्ट, उसका प्यूबो वेजिकल लिगामेंट कौन सा होता है, उसके लिगामेंट्स कौन कौन से हैं, ये सारा आपने हाईलाइट फॉर्म वाला पढ़ना है, ठीक है। ये देख रहे हो, ये सारा अच्छे से एमसीक्यूज के लिए भी इम्पॉर्टेंट। दिस इज फॉर योर ऑस्पी। इसमें आपसे क्या पूछते हैं कि ये पूछ लेते हैं ये स्ट्रक्चर कौन सा है, व्हाट इज दिस स्ट्रक्चर, व्हाट इज दिस, यूरिथ्रा के पार्ट्स पूछ लेते हैं, ये सारा आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। ऑस्पी के लिए इंपॉर्टेंट है, दिस इज ऑल्सो फॉर योर ऑस्पी, ये आपने देखना है। अच्छा जी, ब्लैडर की कॉन्टिन्यूएशन है, एपिक्स ऑफ ब्लैडर, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको पता होना चाहिए। व्हाट इज ब्लैडर बेड, कौन कौन से स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, दिस इज इंपॉर्टेंट। एससीक्यू हाइलाइटेड फॉर्म्स आर इंपॉर्टेंट। आर्टीरियल सप्लाई एंड वेनस ड्रेनेज ऑफ ब्लैडर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सुपीरियर वेजिकल आर्टरी एंड इंफीरियर वेजिकल आर्टरी, वेजाइनल आर्टरीज, ये सारे आपने अच्छे से देखने। So these are important for your Viva. Innervation of bladder is very important. SCQ plus Viva question. इसके sympathetic fibers कहाँ से आते हैं और parasympathetic fibers कहाँ से आते हैं, ये आपने देखने हैं, ठीक है। This is important. नेक्स्ट चलते हैं, दिस इज फॉर योर कॉन्सेप्ट, यू कैन कंसल्ट। अच्छा जी, यूरिथ्रा के पार्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप यहाँ से नहीं करना चाहते तो इसके आगे टेबल है वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो भी देख सकते हो। व्हाट इज द मेल यूरिथ्रा लेंथ, ये आपने देख लेनी है, एमसीक्यू है। What are the parts, prosthetic parts, pre-prosthetic parts, what is the blood supply and what is innervation, ये आपने सारी देखनी है, ठीक है। अच्छा जी, रेक्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर वाइवा एंड एससीक्यू क्वेश्चन, ये देखो ये यूरिथ्रा के पार्ट्स हैं, यू कैन कंसल्ट दिस टेबल आल्सो, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं। अच्छा, दिस इज द कॉन्टिन्यूएशन ऑफ रेक्टम। एम्पुला क्या होता है, सेक्रल फ्लेक्सर क्या होता है, ये आपसे अक्सर पूछते हैं, ठीक है, ये आपने अच्छे से देखने हैं जो मैंने चीजें हाईलाइट की हुई हैं। दिस इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूएशन ऑफ रेक्टम। अच्छा जी, रेक्टम की ब्लड सप्लाई वेरी इंपॉर्टेंट, इंफीरियर रेक्टल आर्टरीज एंड सुपीरियर रेक्टल आर्टरीज, दिस इज इंपॉर्टेंट। अच्छा, ये सारा आपने देखना है। इनोवेशन ऑफ रेक्टम इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर मैं कहूँ तो एससीक्यू में अक्सर पूछ लिया जाता है, ठीक है। दिस इज फॉर योर कॉन्सेप्ट, दीज आर क्लिनिकल्स, ये आपने जस्ट एज सच नॉट इम्पॉर्टेंट बट एक अच्छा सा रीड दे लो इनको, ठीक है, दैट विल बी वेरी वेरी इनफ फॉर यू एंड फॉर योर एग्जामिनर। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा चैप्टर है दैट इज मेल इंटरनल जेनिटल ऑर्गन्स, दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ पार्ट 2 ऑफ पेल्विस, दिस इज इम्पॉर्टेंट। अच्छा, इसमें आपको मेल जेनिटल ऑर्गन्स के सारे पता होना चाहिए। डक्टस डेफरेंस क्या होता है, टेस्टिस, ये इंटरनल ऑर्गन्स है, पहले हमने एक्सटर्नल ऑर्गन्स पढ़े थे, ठीक है। डक्टस डेफरेंस की कॉन्टिन्यूएशन किसकी है, डक्ट ऑफ एपिडिडिमस, अगर ये सारा आपने अच्छे से रीड करना है। इसके ना इनोवेशन, ये देखो ये ऑस्पी के लिए इंपॉर्टेंट है। डक्टस डेफरेंस की ब्लड सप्लाई क्या होती है, वीनस ड्रेनेज। सेमिनल ग्लैंड्स इज इंपॉर्टेंट, इसका स्ट्रक्चर 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, सुपीरियर एंड्स, इंफीरियर एंड्स, ये आपने सारा देखना है, इसकी ब्लड सप्लाई देख लेना। अच्छा, जैकुलेटरी डक्ट्स जस्ट रीड कर लो। प्रोस्टेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ग्लैंड, इसकी लेंथ, विड्थ, इसका सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग घोल के पीजो, ठीक है, अच्छा सा आपने इसको याद करना है, ठीक है। इसकी बाउंड्रीज क्या है, इसके कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं, ये आपने सारा देखना है। अच्छा, ये देखो इस्थमस क्या होता है प्रोस्टेट का, इसके कितने लॉब्स हैं, कौन से लॉब में इन्फेक्शन कैंसर ज्यादा होता है, कार्सिनोमा के ज्यादा
चांसेस होते हैं। ये देखो ये सारे लोब्यूल्स हैं, ये सारा आपने पूरा प्रोस्टेट अच्छे से देख लेना है, ठीक है। अच्छा ये देखो साथ प्रोस्टेटिक डक्ट्स क्या होती हैं, उसकी ब्लड सप्लाई आपने सारी देख ली। बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड्स इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू, इसको जस्ट एक अच्छा सा रीड दे लो। अगर आपसे कोई एमसीक्यू या एससीक्यू पूछते हैं तो यू आर प्रिपेयर फॉर दिस। Innovation of internal genital organs of male pelvis, this is the कंबाइंड फॉर्म, उन्होंने इकट्ठे ही लिख दिए इसको, ठीक है। तो ये आप अच्छा से एक, ये एमसीक्यू है आपका कि पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स कहाँ से आते हैं, ठीक है। दिस होल रीजन इज important because it carries one UQ, but it is not as such important that you are going to utilize your whole time on this region. This is not good. I will say you must have a read of this chapter. This chapter region, this region is important, but this is not as such important. ठीक है। Hypertrophy of prostate आपने अच्छा सा देख लेना है. This is also important for your viva and SCQ question. This is also for your pharmacology. आप आगे जाओगे थर्ड ईयर में पढ़ोगे। अच्छा जी, नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज फीमेल इंटरनल जेनिटल ऑर्गन्स। इसमें आपने क्या देखना है, ओवरीज। ये वैसे अगर मैं आपको कहूँ दिस चैप्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें से अक्सर आपके बहुत सारे यूक्यूज, वाइवा क्वेश्चंस एंड एमसीक्यूज पिक किए जा सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि इसको एक अच्छा सा पढ़ो, ठीक है। अगर इसको सारा भी आप पढ़ सकते हो तो आप इसको पढ़ो। ओवरीज का स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। ये जो मैंने चीजें हाईलाइट की हैं दीज आर इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। ये सारा आपको पता होना चाहिए। व्हाट आर लिगामेंट्स ऑफ ओवरी, दिस इज वेरी वेरी मशहूर है, अव्वल वाइवा क्वेश्चन प्लस यूक्यू, ये आपने देखना है। यूट्राइन ट्यूब्स का आपको जस्ट एक अच्छा सा रीड दे दो, एक अच्छा सा इनफंडिबुलम क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर आपको बताना चाहिए। ये देखो जी, ब्रॉड लिगामेंट, राउंड लिगामेंट, ये सारा इट कैरीज ईच एंड एवरीथिंग फॉर योर कॉन्सेप्ट। ये आप सारा देख लो, ठीक है। डायग्राम इज इंपॉर्टेंट। एम्पुला, इस्थेमस, यूट्राइन पार्ट्स, ये यूट्राइन ट्यूब्स की बात हो रही है। अच्छा, ओवरीज एंड यूट्राइन ट्यूब्स की ब्लड सप्लाई, इनर्वेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपसे अक्सर पूछते हैं, ये आपने देखनी है। ये देखो ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है फॉर योर कॉन्सेप्ट। अच्छा जी, ओवरीज एंड यूट्राइन ट्यूब्स की इनर्वेशन आप देख रहे हो, कहाँ से ओवेरियन प्लेक्सिस होता है, यूट्राइन प्लेक्सिस होते हैं, पेल्विक प्लेन लाइन, ये सारे आपने अच्छे से देखने। अच्छा, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट यूट्रस। यूट्रस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर इन फीमेल ऑर्गन्स। इसके आपको शेप पता होना चाहिए, ये सारी इसकी डिटेल आपने अच्छे से पढ़नी है। अच्छा जी, बॉडी ऑफ यूट्रस स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका फंडस क्या है, इस्थमस क्या है, सर्विक्स क्या है यूट्रस की, इसके कितने पार्ट्स हैं, सुप्रा वेजाइनल, वेजाइनल, ये सारे आपने देखने। यूट्राइन कैविटी, यूट्राइन हॉर्न्स, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर वाइवा। मैं आपको कहूंगी अच्छे से पढ़ो। इसकी वॉल्स, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपने देखना है, ठीक है। अच्छा जी, यूट्रस के लिगामेंट्स तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राउंड लिगामेंट कहाँ से कहाँ एक्सटेंड करता है, ये आपको पता होना चाहिए। ब्रॉड लिगामेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिगामेंट ऑफ द यूट्रस, ये आपसे अक्सर वाइवा क्वेश्चन पूछते हैं। मीजोमीट्रियम क्या होता है, ये डायनामिक सपोर्ट कौन प्रोवाइड करता है यूट्रस को, दिस इज योर एमसीक्यू, ठीक है। अच्छा, ये आगे देखो, कार्डिनल लिगामेंट्स, यूट्रोसेक्रल लिगामेंट्स, what are the relations of uterus, this is also important। आपको रिलेशंस भी पता होना चाहिए कि इसके एंटीरियर क्या है, पोस्टीरियर क्या है, ये देख रहे हो, लेटरल, ये सारा आपने देखना है। अच्छा जी, नेक्स्ट ऑर्गन दैट इज विजाइना। विजाइना एज सच नॉट इम्पॉर्टेंट, बट दे एग्जामिनर कैन आस्क इन योर वाइवा क्वेश्चन, तो आपको पता होना चाहिए इसके बारे में, इसका थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट ले लो। ये विजाइना की ही कॉन्टिन्यूएशन है। विजाइना की इनर्वेशन क्या होती है, और यूट्रस की इनर्वेशन तो ऑब्वियस बात है आपने करनी ही करनी है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट वाइवा और एससीक्यू के लिहाज से वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, ये आपकी ये आगे क्लिनिकल्स आ गए हैं। पेटेंसी क्या होती है, जस्ट एक अच्छा सा रीड दे लो। अगर आपसे एग्जामिनर पूछ भी लेता है तो यू आर प्रिपेयर्ड फॉर हिज और हर क्रिटिकल क्वेश्चंस, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि कोई भी एग्जामिनर का दिमाग खराब हो तो कोई भी पूछ सकता है। एक टॉपिक ट्यूबल प्रेगनेंसी, ये मेरे से पूछा गया था, हालांकि उन्होंने सच उनका कोई टॉपिक नहीं था, बट फिर भी उन्होंने पूछा एक टॉपिक प्रेगनेंसी क्या होती है मेरे से, ये आपको पता होना चाहिए। रेमनेट्स देख लो ये अच्छे से, ये डायग्राम मैनुअल एग्जामिनेशन एज नॉट इम्पॉर्टेंट। अच्छा, ये सारी डायग्राम जस्ट एज फॉर योर कॉन्सेप्ट है, इसको भी अच्छा सा रीड दो, ये सारा रीड कर लो इफ यू हैव इनफ टाइम। बट in real you people not have time because anatomy is very very large subject and giant subject।
I must say that. तो ये आप देख लो, कल्डोस्कोपी, कल्डोसेंटिसिस, दिस इज वेरी वेरी रफ थिंग्स. अच्छा, लेप्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, नो assessed important, you people can see if you have enough time. अच्छा जी, नेक्स्ट हम चलते हैं लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ पेल्विक विजरास. ये आप देख लो एक दफा, एमसीक्यूज इसमें से पूछे जा सकते हैं. अगर बहुत ज्यादा कोई फारिग एग्जामिनर है तो एमसीक्यू जरूर पूछेगा. ये देखो जी, लिम्फ नोड ग्रुप कौन से होते हैं, ये आप एक दफा रीड कर लो इसको, ठीक है. लिम्फेटिक ड्रेनेज फ्रॉम मेल पेल्विक विजरास, फीमेल पेल्विक विजरास की क्या होती है. अच्छा जी, दिस इज द एंड ऑफ योर पेल्विस, पार्ट 2 इज कंप्लीट. इफ यू पीपल want more MCQs coverage and more information, then I highly recommend you people Medical Globe की एक बहुत अच्छी बुक है, that is past MCQs and past UQs crack book. You people must have an idea of that book. I recommend you, this is very helpful for you. Thank you so much. Okay. Medical Globe brings you the solution to your problems, the problems you face during your professional exams. Yes, we are introducing MBBS Cracks. This book contains chapter-wise important topics along with solved past university questions, and important Viva questions are also given to ace your Viva. Besides this, chapter pearls are also given, histology diagrams along with OSPI model pictures in high resolution are mentioned in this book. Besides this series for SCQs, we have also introduced our series for MCQs, that is MCQs Cracks. This book contains MCQs not only from UHS but also from several other universities. So what are you waiting for? Go get this book ordered at your doorstep by ordering at our given number, that is 0335 6633 007. Thank you.